Good morning, my dear students. We have been reading this story for 7 days, and today we have to start from the point where we left yesterday. We left on the point where Dr. Sada was being criticized by his servants, and he was being criticized for his act of harboring and saving the life of prisoner of war, the American soldier. They thought that he was completely wrong in doing this. So we have to start from this. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. According to them, वो किसी की भी ज़िंदगी बचा लेता है, देखता ही नहीं है कि भाई सामने कौन है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, सभी की लाइफ बचा लेता है। और उसको इस चीज़ पर शायद घमंड है कि वो जान बचा लेता है, बस बस लगा रहता है जान बचाने में। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअस मीन्स विद हेट, शी स्प्लिट अ फॉल्स नेक, फॉल मीन्स मुर्गा होता है उसको बोलते हैं, फॉल्स नेक स्किलफुली, स्किलफुली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक, एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हुए बर्ड को उसने पकड़ लिया, एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्टारिया वाइन। विस्टारिया वाइन इज़ अ वाइन ऑफ flowers. These wines are generally found in China, Japan, and other countries around China and Japan. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. According to the gardener, blood is fertilizer, so she did not waste it. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? Condemned means given sentence or punishment as a traitor. Traitor means cheater, traitor for the country, कंट्री के साथ जो चीट करे. सो शी इज सेइंग कि बच्चों के बारे में सोचना चाहिए हमें. अगर सडाव को सजा हो जाती है तो बच्चों का क्या होगा? व्हाट विल बी देयर फ्यूचर? दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right, she knew too, in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not a sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday, when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage means to lessen, to decrease it. Indeed, he was a great trouble in this house. So here in this paragraph we have read that servants were talking with each other only to मेक हाना हेयर इट. वो हाना को सुनाने के लिए ही ये बात कर रही थी. हाना भी जानती थी कि वो ठीक कह रहे थे, वो गलत नहीं थे. जो कुछ वो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था. बट हाना ये नहीं समझ पा रही थी कि वो उसके मन का एक और हिस्सा है जो इस चीज़ को अलो नहीं करता, उस अमेरिकन को मरने देने के लिए नहीं छोड़ सकता. और वो जानती थी, अच्छे से जानती थी कि वो जो अमेरिकन है वो उनका दुश्मन है. इवन कल की बात वो याद करती है, जब उसने अपना नाम बताया था टॉम ने, तो उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, और इस बात से अमेरिकन को बड़ा बुरा भी लगा. बट उसने उसके उस ध्यान न देने वाली चीज़ को कम करने के लिए कुछ नहीं किया. इट मीन्स शी रजिस्टर्ड हर indifference. She didn't want him to tell her his name. In this way, he came to know that she did not want to ask his name. As for Sadal, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning. जो stitches आए थे वो आज की सुबह निकाल दिए गए थे. And the young man would, in a fortnight is the period of 2 weeks, be nearly as well as ever.
Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. अब सदाव को लगा कि ये ठीक हो जाएगा, विद इन 15 days ही विल बी ओके। तो उसने जो चीफ है पुलिस का उसको रिपोर्ट करते हुए एक लेटर टाइप करना शुरू किया। एंड व्हाट डिड ही राइट? ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, इतना ही टाइप किया उसने। एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। इससे ज़्यादा वो टाइप नहीं कर पाया। एंड हेयर इट हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाय द राइटर वाई ही डिड नॉट डू दैट, मीन्स उसने टाइप क्यों नहीं किया आगे। वी ऑल नो दैट ही डिडंट वॉन्ट दैट अमेरिकन सोल्जर टू बी किल्ड। जब आप किसी की जान बचा लेते हो ना, उसके बाद उसको मरने के लिए छोड़ना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सेव टू किल दैट पर्सन। Sadao went back to his office and we have read it. On the 7th day after that, two things happened. In the morning the servants left together. सारे के सारे नौकर एक साथ चले गए 7वें दिन। Their belongings tied in large square cotton kerchiefs. ये 7वां दिन है और हमारे इस स्टोरी को पढ़ने का भी 7वां दिन है। They had tied their all things in kerchiefs, means चद्दर वगैरह को बोलते हैं। When Hannah got up in the morning, nothing was done, means they had not done anything. The house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed, she was in grief, she was hopeless and even terrified. But her pride as a mistress would not allow her to show it. क्योंकि वो मालकिन थी ना, अपने इस डर को और अपनी हताशा को वो दिखा नहीं सकती थी नौकरों के सामने। इंस्टेड शी inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all they had done for her. तो उसने बड़े ग्रेस के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ उनको विदा किया, उनको पे भी किया। But she didn't show her mental condition, her emotions to the servants. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving, she was so sad. Grieving means sad, that after she had gone, she ran back to Hannah. यूमी तो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो जाने के बाद फिर एक बार वापस भाग के आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी। अगर बच्चा मुझे ज़्यादा याद करे ना तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ और तुम्हें पता है वो कहाँ है। इससे पता चलता है द सर्वेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू गो, दे वर जस्ट प्रेशराइजिंग देयर मास्टर्स so that they could see what was needed to be done at that time. उनको दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे ताकि ये इस प्रेशर में आकर के वो काम करें जिसकी ज़रूरत है, मीन्स उस अमेरिकन सोल्जर को निकाल दे अपने घर से। इट वॉज देयर वे ऑफ ब्रिंगिंग द मास्टर्स ऑन द करेक्ट पाथ। थैंक यू हाना, हाना said smiling, but she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. उसने थैंक यू बोला, लेकिन उसने मन में सोच लिया कि मैं तुझे तो नहीं बुलाऊंगी बिल्कुल भी। She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. दोनों ने मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प की। हाना ने किचन में काम किया और सडाओ ने बच्चों को संभाला, पर उन्होंने नौकरों के जाने के बारे में कोई बात नहीं की, बस इतनी बात की कि वो जा चुके। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, शी केम बैक टू सडाओ। वाई इज इट वी कांट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, शी आस्क्ड हिम। भाई हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है वो जो सबको दिखाई दे रहा है?
कि हमें क्या करना चाहिए. इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज. हम दूसरे जैपनीज से अलग क्यों हैं. Sadao did not answer. But a little later, he went into the room where the prisoner was and said briskly. Briskly means abruptly, अचानक, एक तेजी के साथ, जल्दी के साथ उसने कहा, Today, you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. भाई 5 मिनट के लिए तुम खड़े हो सकते हो, कल डबल कर सकते हो. यू हैव सो मच स्ट्रेंथ, यू हैव गोट सो मच पावर कि भाई तुम इतने ठीक हो गए हो कि अब 5-10 मिनट खड़े हो सकते हो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर, a ray of terror on the young face that was still very pale, very weak, yellowish, जैसे ब्लड ना हो. जब उसने ये बात कही ना सडाओ ने कि तुमको जितना जल्दी तुम ठीक हो सके उतना अच्छा, तो वो डर गया एकदम से. ओके, द बॉय मर्मर्ड. एविडेंटली, क्लियरली, he was determined to say more. He wanted to say something more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. Don't thank me too early, Sadao said coldly. Sadao said without any emotion. सदाओ ने बिना इमोशन के बोल दिया, भाई इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's. ऐसा टेरर जिसको पहचानना बिल्कुल ईजी है. जानवर की आंखों में जैसा टेरर दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही टेरर उसकी आंखों में दिखाई दिया. मीन्स animals are not able to convey their feelings, but if they are afraid, we can see it, we can observe it in their eyes. So same fear was visible in the eyes of Sadao, sorry, the POW, prisoner of war. The scars on his neck were crimson. Crimson means dark red. For a moment, those scars, what were they? Sadao did not ask. भाई ये स्कार्स, वो घाव के निशान कैसे थे, क्यों लगे थे उसको, सदाओ ने पूछा नहीं. In the afternoon, the second thing happened. Hana, working hard on unaccustomed labor. Unaccustomed means that we have no habit. Saw a messenger come to the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. उसने जैसे ही मैसेंजर को देखा, वो सांस नहीं ले पाई. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. उसके दिमाग में आया कि नौकरों ने शायद सारी बात बता दी है जाते ही. शी रैन टू सडाओ, गास्पिंग. गास्पिंग मीन्स ब्रीदिंग हैविली, अनेबल टू अटर अ वर्ड, अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू से anything. But by then messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. She could not say anything to Sadao. हालांकि वो सदाओ के पास दौड़ते हुए गई थी ये बताने के लिए, भाई मैसेंजर आया हुआ है, कुछ खतरा है, बट वो कुछ बोल ही नहीं पाई. मैसेंजर साथ के साथ पहुंच गया साथ में ही, तो उसने सिर्फ इशारा किया कि ये आ गया है. एंड व्हाट वाज द फियर इन हर हार्ट. क्या फियर था कि सर्वेंट्स गए, उन्होंने जाते ही बता दिया और ये मैसेंजर आया है अरेस्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई मैसेज देने के लिए आया है. सडाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. भाई जिस रूम में वो बैठा था उसका एक पार्टीशन मीन्स डोर ओपन कर रखा था ताकि सनलाइट आती रहे. What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. मैसेंजर यूनिफॉर्म में था तो सडाओ रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा हो गया. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, Hana breathed. Hana ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह, is that all? बस यही बात है. All? The messenger exclaimed. Is it not enough? क्या ये बड़ी बात नहीं है? आप ये कह रहे हो कि बस यही इतना ही है. Indeed it is. नहीं, हाँ बहुत बड़ी बात है. She replied, I am very sorry for that. भाई उसके लिए तो छोटी बात है. Because she was thinking
Bigger than that, she was thinking about bigger than that. She was thinking about their themselves being arrested. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. More exhausted from her fright means fear, than from work. तो वो अपने काम की वजह से थकी हुई नहीं लग रही थी. शी वॉज फुल ऑफ फियर बिकॉज ऑफ हर फुल ऑफ शी वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ हर फियर. वो डर की वजह से थकी हुई थी. और सडाव ने ये चीज़ देख ली. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड. ही गेज्ड डाउन इन टू हर anxious eyes. Gazed means looked intently without blinking her eyelids. Tension. Anxious means tension के साथ उसने उसकी आंखों में देखा. I must get rid of this man for your sake. तुम्हारे लिए मुझे इस इंसान से छुटकारा पाना पड़ेगा. He said in distress. Somehow I must get rid of him. किसी ना किसी तरह से मुझे छुटकारा पाना होगा. And now he was completely selfish. अब वो सेल्फिश हो गया है. सदाव ने जब ये डिसीजन लिया है, इट वॉज बिकॉज ही कुड नॉट सी हिज वाइफ इन पेन, इन डिस्ट्रेस. और उसे लगा कि कौन ज़्यादा प्यारा है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है. फैमिलीज मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमैनिटी. लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए अपने परिवार का बलिदान कर देते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानवता के लिए अपने गांव का बलिदान कर देते हैं, देश का बलिदान कर देते हैं. तो ये वही चीज़ है. लेकिन हर एक इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं सोच सकता. आपके मन में बहुत द्वंद्व चलते हैं. आप कोई अच्छा काम करने की सोचोगे तो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी. ये बाधाएं होती हैं. अच्छा काम करने के रास्ते में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, जैसे सड़ाओ के रास्ते में आ गई अभी. उसको अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचना है. वही वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक पल के लिए भले ही सोचा तो है, और ये एक पल के लिए नहीं सोचेगा. सड़ाओ ज़्यादा सोचेगा थोड़ा सा. सड़ाओ गोज टू सी द जनरल. ऑफकोर्स द जनरल सैड वीकली. ऑफकोर्स. What did he say? Of course, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. और मैं इसीलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी. जापानीज़ जनरली जाते नहीं हैं वहाँ पढ़ने के लिए. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. आ गया सडाओ के मन से. भाई मैं उस इंसान की इतनी टेंशन नहीं करता, लेकिन मैं अभी इतने अच्छे से, इतनी सक्सेसफुल तरीके से मैंने उसका ऑपरेशन किया है, उसके बाद मैं उसको कैसे मरने के लिए सौंप दूँ? जान देने के लिए बाद जान कैसे ले लूँ? आई थिंक यही कहना चाहता होगा. यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स असेंशियल, आवश्यक, जरूरी, इम्पोर्टेंट टू मी. जनरल ये कह रहा है कि भाई इससे तो मुझे ये पता लग गया कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो. किससे? कि तुमने उसको बचा लिया. जब तुमने उसको बचा लिया तो मुझे भी बचाओगे. तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो, तुम तो मरने ही नहीं देते किसी को. तुम्हारी स्किल का एक और नमूना मिल गया हमको, एक और एग्जाम्पल मिल गया कि कितने ज़बरदस्त डॉक्टर हो तुम. तो कितने इंडिस्पेंसिबल, कितने आवश्यक हो तुम मेरे लिए. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन. यू आर सो स्किल्ड. यू से यू think I can stand one more such attack as I have had today. तो तुम ये कह रहे हो कि भाई जैसा अटैक मुझे आज आया है वैसा ही एक और अटैक मैं झेल सकता हूँ, मैं मरूंगा नहीं. सो हियर वी कैन क्लियरली असर्टेन कि सडाओ तो बात बताना चाहता है अमेरिकन सोल्जर के बारे में, बट जनरल जो है वो अपने ही बारे में बात कर रहा है. बिकॉज ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ. वो मरने वाला है ना, और उसको सिर्फ एक ही आशा की किरण नज़र आती है, और वो क्या है? सडाओ. सडाओ ही बचा सकता है उसको. और जब उसने ये बताया कि उसने उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को बचा लिया, तो उसको ये लगा कि भाई तो ज़बरदस्त डॉक्टर है, पहले से ही पता था मुझे, और आज एक नमूना और दे दिया इसने बचा करके उसको. नॉट मोर देन वन, सडाओ सेड. एक से ज़्यादा नहीं. एक तो झेल सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं.
देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, फिर तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या, मुझे कौन बचाएगा? द जनरल सैड विद एंग्जाइटी, विद टेंशन, हिज लॉन्ग पेल Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. He was thinking something. You can't be arrested. तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। You know that why he is saying this. अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? The general said. वो क्लियरली नहीं बोल रहा है, बट वी नो वाई ही इज सेइंग दिस एंड सडाव ऑल्सो नोज दिस। क्लोजिंग हिज आइज, वो अपनी आंखें बंद करते हुए कह रहा तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता भाई, तुमको गिरफ्तार कर लिया गया तो मुझे कौन बचाएगा। ही माइट बी थिंकिंग दिस, सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन। सो ही इज सेइंग कि भाई तुमको तो मौत की सज़ा सुना दी जाए, तुमको तो लटका दिया जाए और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो, तो मुझे कौन बचाएगा? हु विल सेव मी? कौन बचाएगा भाई मुझे? सो ही वॉज सेइंग दैट he could not be arrested. There are other surgeons, Excellency. Sadao suggested. None I trust. मैं किसी पे विश्वास नहीं करता. The general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. जो अच्छे से अच्छे ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स हैं ना जापान में, वो सारे के सारे जर्मनी से पढ़ के आए हैं और वो सब ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मान लेंगे जब मैं मर जाऊंगा। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कांट बेटर कंबाइन द जर्मन रदलेसनेस मीन्स क्रुएलिटी विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। अमेरिका के लोग अकॉर्डिंग टू जनरल आर सेंटिमेंटल, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, दे गिव मोर वैल्यूज टू relations, but Germans are ruthless. They don't think about relations, they don't think about friends, they just do what is right. वो sentimental नहीं होते हैं, and that's why the general does not believe in German surgeons, the surgeons who have been trained by Germans. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. अगर ऐसा हो जाए कि हम दोनों को कंबाइन कर ले, अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी और जर्मन रदलेसनेस, तो फिर तुम्हारा जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ना, उसको तुम एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हो। एग्जीक्यूशन मीन्स मौत की सज़ा, और उसके बाद तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे, तुम बदला नहीं लोगे। व्हाट इज़ ही थिंकिंग? जनरल को लग रहा है कि अगर इसका अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पकड़ लिया और उसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो डेफिनेटली ही विल टेक रिवेंज, और ये मुझे मार देगा ऑपरेशन करते वक्त, बदला लेगा। सेंटिमेंटल हो गया ना ये, इसने उसको बचाया ना, तो ये थोड़ा सा अटैच हो गया उसके लिए। दिस इज़ द व्यू ऑफ द जनरल। द जनरल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। एज अ जैपनीज, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। अब जनरल ने पूछा क्या तुम इन दो फॉरेन एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हो क्या किसी एक बंदे के अंदर? मीन्स तुम सेंटिमेंटल तो हो ही, अमेरिका से ट्रेन होके आए हो, रदलेस भी हो जाओ थोड़े से। रदलेस का मतलब थोड़े क्रूअल भी हो जाओ भाई। उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर मार दें तो इतना दिन तुम निर्दयी हो जाओ कि तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े, और तुम इसलिए फ़र्क ना पड़े क्योंकि तुम ये सोचो कि भाई ये हमारे देश का दुश्मन था, और तुम सेंटिमेंटल ना हो वहाँ पे, और मुझे बचाते वक्त सेंटिमेंटल हो जाओ। सो ही वॉन्टेड टू कंबाइन दीज टू एलिमेंट्स इन सडाओ एंड ही said it jokingly. So my dear students, it is enough for today. We'll continue tomorrow. Till then, take care. Bye.